Okay, good morning, students. Today's topic is retirement of old partner. Already we had studied about the retirement of old partner, but today we have to study adjustment of capital. Okay, so in previous classes we had studied the full place question of partnership, but today आज हम लोग पढ़ेंगे adjustment of capital. Okay, so now see the slide. Next, here you will get the question. The balance sheet of X and Y and Z who are sharing profit and the proportion of capitals is as follows. So now see the capitals जो इनका profit sharing ratio है, ध्यान देना आप सभी लोग. This is saying the balance sheet of X, Y, Z who are sharing profit in the proportion of capital means इनका profit sharing ratio क्या है वो capital ratio होगा. Okay. Now you will see the balance sheet. These are sundry creditors, capital of X, Y, and Z, and asset side you will find the cash at bank, sundry debtors, less provision, stock, plant and machinery, land and building. Now external information means additional information. Y retires and the following adjustment of assets and liabilities have been made before the ascertainment of the amount payable by the firm to Y. Now you will find that the stock will be depreciated by 5%, that the provision for doubtful debt be increased to 5% on debtors. Now that the land and building be appreciated by 20%, that a provision of rupees 750 be made in respect of outstanding legal charges, that the goodwill of the entire firm be fixed at rupees 16,200, and Y's share of the same be adjusted into the accounts of X and Z, that the X and Z decide to share future profits of the firm in equal proportion. You can take this screenshot. Already you have downloaded, so no need to take SS. Next, that the entire capital of the new firm. This is what the information regarding adjustment of capital. That the entire firm of the new firm be fixed at rupees 48,000 between X and Z in the equal proportion. For the purpose, actual cash is to be brought in or paid off. Now you are required to prepare revaluation account, partners capital account, bank account, and revised balance sheet after Y's retirement. Also indicate the gaining ratio. Okay, students. So now follow the instruction. Take SS. Already you have taken. Sit with the notebook and pen. Mute your mic. Use chat box to ask queries. If video is blur or voice is not clear, do not interrupt in between. It may be due to network. I will send the video link, okay, of this class. Okay, so students, now I hope you all have taken. So I'm going to stop the share and ready with your pen and paper. Okay. And just pin my video, everyone, so that you can see the full screen. Okay, students. So question already you having. Now we have to discuss solve here as per the question. It is saying that prepare revaluation account. Okay. So in revaluation account, as you know, the information you have studied that the stock be depreciated by 5%. Stock be depreciated by 5%. What does it mean? The stock is reducing. Okay. Stock is reducing by 5%. So it will be a loss, as you know. So how much value of stock is given? So you will see in the question, the total stock is given of rupees 10,000, and you have to calculate 5%. So it will be loss. So we should write in debit side because loss will be written in debit side. To stock, 5% will be 500 or 10,000, right? Next, that the provision for doubtful debt
be increased to 5% on debtors. So बेटा आप देखो क्वेश्चन में कि पहले से डाउटफुल डेट 100 का दिया हुआ है और टोटल डेटर की वैल्यू है 5000. So 5000 का if we are going to calculate 5% as per the question, so you will get 250. Okay, you should maintain a provision for doubtful debt at 250. But earlier in the question is given how much? 100. So how much you require? So 150 you need to create more provision to maintain it 5%. So it will be a loss when there is increase in provision. So provision for doubtful debt 150. Okay, ये आपका हो गया provision. Now you will see that the land and building be appreciated. Land and building is an asset and it is to be appreciated. It means what? It's a profit. So we should write in credit side by land and building. So by how much? 20%. So students, 20% of land and building. So building की value given है 25,000, 25,000, and it should be increased by 20%. So 20% will be 5,000. This means the value of building is increasing by rupees 5,000. Okay. So you will write 5,000 in credit side. Next, it is saying that a provision of 750 be made in respect of outstanding legal charges. So एक provision create करना है outstanding legal charges के लिए कितना? How much? 750. So whenever we create a provision, so it will be a loss. So we will write to provision for how, for what? It is saying for outstanding legal charges. Outstanding legal charges. So 750. So it will be a loss. Now everything is over in the revaluation. Regarding revaluation, all the information we have done. So now question, you know that whenever we prepare the account at the last, we need to make the balance. So how we need to make the balance? So we can see here in the revaluation account, credit side is 5,000 and debit side is 500 plus 150, 650 and 750. So very less than the credit. So credit side will be more. So this means balance would be the credit balance because credit side is more. So we will put same amount in both sides. And now we will do minus. So credit is 5,000 and debit is how much? 750, 150, 900 and 514. So 1,400. So minus करते हैं तो 3,600 is your profit. The balancing figure 3,600. So this profit should be distributed. Profit transferred to. So who's the old partner? X, Y, and Z. Right? So what is the old ratio? Capital ratio, student. So see what are the capital. X की capital कितनी given है? 25,000. Y की capital is given 20,000. And Z's capital is given 15,000. And profit sharing ratio is in the proportion of capital. So ये 0 से 0 cancel हो गया. So 5 3s are 5 4s are 5 5s are. यानी रेशियो क्या बनेगा? 5:4:3. ठीक है? So अब इसको ऐड करेंगे तो 5 plus 4 9 plus 3 12. So this means x का शेयर जो होगा 5/12 x का शेयर. तो 12 3s are 36. तो 3 5s are 1500 यहाँ आ जाएगा. ठीक है? तो लाइकवाइज अब अगर हम इसका निकालेंगे y को तो यहाँ क्या हो जाएगा? y का हो जाएगा 4/12. सो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 3 4s are 12. ठीक है? और z का जो होगा वो इसी में 3/12 का करना होता तो आ जाएगा 900. ठीक है? सो आप टोटल करके देखेंगे यहाँ 3,600. सो आई होप रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्लियर. ऑलरेडी यू हैव प्रिपेयर्ड. ओके स्टूडेंट्स. So now we need to prepare partners capital account. So we have to focus on the partners capital account. Now see the capital account. How is to be prepared? Okay, students.
So this is what x y z. ओके, ये हो गए एक्स वाई जेड का कैपिटल अकाउंट और सेम अमाउंट कॉलम रिपीट होगा, यू नो, एंड दिस साइड. ओके, so you will see. Okay students, so you will see here we will write partners capital account. Partners capital account here x, y and z, and here we will write particulars. Okay, and same z, y and x. Particulars. Okay, so now this is the format. As you know that first of all we should write the opening balance of the capital account. Okay students, so we will write by balance dd. You will see in the question you already having. So in question the capital is given, opening balance 25,000 of x, 20,000 of y and 15,000 of z, right? So 25,000, 20,000 and 15,000 is the capital of x, y and z. Now you know that after writing the opening capital we go through the accumulated profit, loss and reserve and fictitious asset, as already have taught the second step. So now see in the question, is there any kind of, in liability side no reserve, no profit, in asset side no any kind of fictitious asset. This step should be skipped because no information is given. Now next step we will record the revaluation account. Okay, so you have prepared revaluation account. You can see here the profit on revaluation. So profit on revaluation account should be credited to partners capital account. So here we will write by revaluation account. Okay students, so revaluation account में कितना होगा, 1,500 to x और 1,200 to y and 900 to z. So now revaluation account is also over. Now next step we will do the goodwill. Okay students, if goodwill of the firm is given or not in the question you will see. So when you will see the fifth information in your question, you are having fifth information that is saying that the goodwill of the entire firm be fixed. So goodwill of the firm, देखो यहाँ पे goodwill of the firm be fixed. Okay, how much? Rupees 16,200. स्टूडेंट गुडविल ऑफ द फर्म कितना फिक्स किया गया, 16,200. अब इसमें से करना है क्या कि हमको जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर फाइंड करना है. तो हु इज गेटिंग रिटायर, y. So be careful, y is retiring. So y share is how much? So you have calculated from on the basis of capital now 5:4:3. So y share is 4/12. So you will calculate 4/12. Okay, so 4/12. So 4 1 जा and 4 3 जा, 3 5 जा and 3 4 जा. So 5,400 will be the share of goodwill of y. Okay, so this 5,400 should be given by whom? By x and z in their gaining ratio. So now see in the question what is the gaining ratio. So I already have taught if there is no any new ratio or gaining ratio, the old ratio should be gaining. If there is given, so we need to calculate. So let us see the information. 6 information you will find, students, that x and z decided to share future profits in equal proportion. Okay, their new ratio is given, so be careful, don't share it in the old ratio. So new ratio is given, so we will find old ratio minus new ratio, और माइनस में आता है तो ये गेनिंग कहलाएगा. आपको पता है, या न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर लो तो भी आ जाएगा. तो यू विल टेक x का ओल्ड रेशियो कितना है 5/12 कैपिटल रेशियो के हिसाब से, और न्यू रेशियो कितना है 1/2. तो एलसीएम लेते हैं हम लोग तो 12 बन जाए, 1 5 जा 2 6 जा, तो -1/12 तो ये गेन कर रहा है 1/12. नाउ लाइकवाइज हम लोग z का पता करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो z का आप पता करो, तो z का ओल्ड रेशियो कितना था, लास्ट वाला है z, तो 3/12 है, और नया रेशियो 1/2. तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 3 and 2 6 जा, तो
6/12, तो गेनिंग रेशियो क्या आ रहा है 1:6। सही है ये, एक बार चेक कर लो। ठीक है, गेनिंग रेशियो इन लोगों का दिया हुआ है 543 आया हुआ है कैपिटल रेशियो, और इनका जो नया रेशियो है वो 1:1 है। ठीक है, तो 5/12 माइनस 1/2 कर रहे हैं, तो 12 1 जा 1 5 जा और 2 6 जा और 6 1 जा, तो 1/12 आ गया। और यहाँ पर हम ले रहे हैं तो 12 1 जा 1 3 जा 2 6 जा एंड 6 1 जा, तो यही रह जा रहा है, तो -6 यानी 1:6। अब 1:6 में हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना आएगा आप लोग कैलकुलेट करो, कॉपी पेन आप लोग रखिए, फटाफट कैलकुलेट करो कि 5400 को 1:6 में हम लोग को शेयर करना है। ठीक है, ये आपका 3 5 सा 3 4 सा, ठीक है, जल्दी से कीजिए आप लोग, और मैसेज में आप लोग मैसेज कीजिए। सर यस सर 1:3 आना चाहिए ना, 3 - 6 हो रहा है तो वहाँ पे 3, वेरी गुड। I am reading it again. I'm not getting you why I'm writing 6. Okay, -3/12. So 1:3. Now do calculate everyone. This 5400 should be given to y by whom? X and Z. तो x कितना देगा? So x देगा 1/4. 1:3 means क्या हुआ? 1/4. So 4 1 जा 4 and 4 3 जा 12, 4 5 जा 1350 50 and Z will give कितना 4050। Z कितना देगा आप कैलकुलेट कर लो। सो इसी अमाउंट में आप 3 का मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 4050 Z देगा। तो अब देखो ये गुडविल का पैसा मिलना किसको है, आप लोग को याद होना चाहिए, जो रिटायर हो रहा है उसको मिलेगा। सो Y is getting retired, तो Y will be getting 1350 from X and 4050 from Z। तो यहां लिखेंगे बाय X कैपिटल एंड बाय Z कैपिटल, राइट। ये हो गया, हमने गुडविल दे दिया Y को। लेकिन आप ध्यान रखो कि जनरल एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, राइट। सो गेनिंग पार्टनर में हमारा X और Z है, तो इसको डेबिट करेंगे, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, Y, क्योंकि Y रिटायर हो रहा है, सो Y को क्रेडिट करेंगे। तो Y को तो क्रेडिट कर दिया, अब बारी है X और Z को डेबिट करने की। तो X डेबिट होगा 1350 और Z होगा 4050, और यहां लिखेंगे हम लोग टू वाइज कैपिटल। ठीक है, हम लोग लिखेंगे टू वाइज कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि दिस इज क्लियर। वाइज कैपिटल मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लो, थोड़ा सा हो सकता है कि दूरी की वजह से डिस्ट्रैक्ट समझ में ना आ रहा हो। ये दिखा प्रॉपर, ठीक है। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गुडविल हो गया, अब क्या बांटना है स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को क्या बांटना है, आप ध्यान रखो। तो गुडविल हो गया, अब है कि इसमें कह रहा है कि द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड, यानी कि आप देखो कि आपने ओपनिंग कैपिटल का रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, और आपने रिवॉल्यूशन का रिकॉर्ड कर लिया, गुडविल का रिकॉर्ड कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है बैलेंसिंग। सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम बाद में भी कर लेंगे, पहले बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करके ये पता करेंगे कि कितना पैसा Y को देना है। ध्यान रखो स्टूडेंट्स, अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं होता तो हम लोग सीधे बैलेंसिंग करते और Y का सेटलमेंट कर देते। तो यहाँ हम लोग पहले Y का सेटलमेंट करेंगे और बैलेंसिंग करने के बाद फिर से एडजस्टमेंट करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें टोटल करना पड़ेगा Y का, क्योंकि Y रिटायर हो रहा है ना। तो Y रिटायर हो रहा है और देखो कितना आ रहा है Y का, तो 20,000 1200 और 5400 दोनों को मिलाकर गुडविल हो जाएगा। तो मैं यहाँ ऐड कर ले रहा हूँ 20,000 1200 एंड 5400, राइट। 006 to 26,600 टोटल आ रहा है जेड का, सॉरी वाई का।
सो अब यही हम यहाँ पर भी लिखेंगे 26,600, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये बताओ कि यहाँ y में कोई भी चीज डेबिट में अमाउंट है, नहीं है, तो बैलेंस जो करेंगे तो सेम अमाउंट आएगा। अब इस बैलेंस को क्या किया जाए, y को पेमेंट किया जाए या लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए, क्या करना है? तो देखो बेटा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, आई थिंक कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता है तो मैंने आपको बता रखा है कि सारा पैसा रिटायरिंग पार्टनर का उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम टू वाइज लोन अकाउंट, वाइज लोन अकाउंट कितना रुपया आ रहा है 26,600, ओके। सो आप चेक करोगे आंसर तो इतना ही आएगा 26,600। अब रही बात एडजस्टमेंट की, अब एडजस्टमेंट कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। अभी यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को कि कैसे हो रहा है, ओके। सो अब देखो एडजस्टमेंट क्या करना है, सबसे पहले बैलेंसिंग बाकी बचे हुए पार्टनर का कर लो, जितने भी बचे हुए पार्टनर है। कौन कौन बचा है, एक्स और जेड। तो जेड का हमने यहाँ क्रेडिट लिखा 15,900, इसका लिखा 26,500, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग जेड का लिख रहे हैं बैलेंस। सो क्रेडिट साइड ज्यादा है तो पहले यहाँ लिख लो, ठीक है, माइनस करते हैं तो 0 5 प्लस 5 हो गया, 5 5 10 0 से लगा 1 और 8 9 हो गया, और 11,850 रुपया बैलेंस आ रहा है जेड का। अब एक्स का कैलकुलेट करो, आप सभी लोग पेन पेपर रखे हो, 26,500 माइनस करते हैं तो इनका आ रहा है 0 5 5 10 0 से लगा 1 3 4 और 1 हो गया 5 और 1 5 6 25,150 रुपए। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ये बैलेंस सीडी हो गया। यहां तक तो हो गया, अगर एडजस्टमेंट कैपिटल नहीं बोला होता तो यहीं पे क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट फिनिश हो जाता, लेकिन एडजस्टमेंट बोला है, तो जब भी एडजस्टमेंट बोलेगा तो इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सीड करिए आप लोग, ठीक है, पहले बैलेंसिंग कर लो उसके बाद एक्सीड कर लो, ठीक है, ये ठीक है। अब जो बैलेंस इधर लिखा है उस बैलेंस को यहाँ ट्रांसफर कर दो। सो बाय बैलेंस बीडी, यहाँ सीडी है तो यहाँ बीडी, तो कितना है 25,150 और इनका कितना है 11,850। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पूरा कैपिटल फर्म का कितना होना चाहिए 48,000, बोला है कि 48,000 में फिक्स कर देना है। तो यहाँ देखो बेटा आप लोग वर्किंग दो, इंटायर कैपिटल कितना होनी चाहिए, इंटायर कैपिटल 48,000 एज पर द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन रीड करोगे तो पता चलेगा। अब ये 48,000 रुपया किसके होना चाहिए, एक्स एंड जेड के बीच में होना चाहिए, और किस प्रोपोर्शन में, तो न्यू प्रोपोर्शन में बोला है कि इक्वल प्रोपोर्शन में। सो हम एक्स का कैपिटल और जेड का कैपिटल कितना आएगा, आप देखो बेटा आप सभी लोग 48,000 एंड 48,000 पहले लिख लिया, और चूंकि इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए क्योंकि नया रेशियो इनका इक्वल है और ऐसा बोला भी है क्वेश्चन में, तो x का कैपिटल होना चाहिए 24,000 और z का कैपिटल भी 24,000 होना चाहिए एज पर एडजस्टमेंट या क्वेश्चन। तो है कितना कैपिटल 25,150 और इसका है 11,850, बट एज पर न्यू एडजस्टमेंट क्या होना चाहिए 24,000 ईच। तो हम लोग करेंगे क्या, तो ये जो 24 है उसको इस साइड लिखेंगे टू बैलेंस सीडी करके ऊपर से 1-2 लाइन छोड़ते हुए, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस सीडी और 24,000 लिखेंगे हम लोग एक्स में और 24,000 लिखेंगे जेड में, राइट। अब क्वेश्चन में बोला है कि दिस एडजस्टमेंट शुड बी मेड बाय एक्चुअल कैश ब्रॉट इन और पेड ऑफ। इट मींस कि अगर पहले से पार्टनर का कैपिटल ज्यादा है तो वो पेड ऑफ कर दिया जाएगा उसको, अगर कम है तो वो घर से लेकर आएगा, और किस चीज में, कैश में लेकर आएगा, राइट। सो यहां पर आप देखो कि जो जेड है, जेड का 24,000 होना चाहिए, है कितना 11,850, इसका पैसा कम है तो ये घर से लाएगा, तो हम यहां लिखेंगे बाय कैश, वो कितना लाएगा तो उसका 24,000 हो जाए, ठीक है, 11,850 है तो आप देखो 24,000 होना चाहिए और है कितना 11,850 रुपए, तो कितना पैसा और लाएगा, माइनस कर लो पता चल जाएगा 12,150। वेरी गुड 12,150 रुपए ये लेकर आएगा।
ठीक इसी तरह अब हम लोग x का पता करेंगे। तो x का कैपिटल होना कितना चाहिए, 24,000 होना चाहिए, और है कितना 25,150, इसका तो ज्यादा है कितना 1,150 रुपया ज्यादा है, तो ये विड्रॉ कर लेगा। तो विड्रॉ करने के लिए ऊपर लिखेंगे यहाँ टू कैश अकाउंट, ठीक है, जहां बैलेंस सीधी लिखे ठीक उसके ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, सो आप जल्दी से नोट कर लो इसको, जस्ट 10 मिनट्स 9 मिनट्स आर लेफ्ट। सो कैश अकाउंट, तो ये लिखेंगे हम लोग 1,150, ठीक है। ये आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। जिसको समझ में आ गया, नहीं आया वो पूछ सकता है, आप देख लो। अगर से आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो मैं स्क्रीन के पास थोड़ा सा कर दे रहा हूं। दिख रहा है प्रॉपर स्क्रीन स्टूडेंट, डेबिट साइड का दिख रहा है? ओके, आप देख लो पूरा, स्क्रीनशॉट भी क्वेश्चन में चाहो तो ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ आई एम मूविंग फॉर द बैलेंस शीट एंड बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट पहले हम लोग बना लेते हैं, टाइम बहुत कम है, फटाफट बना लो। तो हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे, आप लोग देख लो जिसको जिसको आ रहा है। बैंक अकाउंट क्वेश्चन में बोला हुआ है, बैलेंस शीट से पहले बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पैसे का चेंजेस हुआ है तो इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको मालूम है पर्टिकुलर्स, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो क्या स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग लिखते क्या है, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आप लोग ओपनिंग बैलेंस लिखिए। ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्वेश्चन में मिला ओपनिंग बैलेंस? ओके, मैं लिख दे रहा हूं ओपनिंग बैलेंस। देखो आपका कैश एट बैंक दिया होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कैश एट बैंक दिया है 15,600, तो उसको लिखेंगे टू बैलेंस डीडी 15,600, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि कितना पैसा आया, तो देखो कौन पैसा लाया है, जेड लेकर आया है, तो पैसा आएगा तो इधर लिखेंगे टू जेड कैपिटल। कितना जेड लेकर आया है 12,150, और एक्स विड्रॉ किया है कितना 1150, तो यहां लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल 1150, ठीक है। अब बैलेंस पता कर लो, तो बैलेंस पता कर रहे हैं हम लोग, तो डेबिट बैलेंस आएगा, ठीक है 27,750, 16,600, तो लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। तो 16,600 रुपया बैंक बैलेंस आएगा बेटा, आप देख लो क्वेश्चन में। बैंक बैलेंस 26,600 आ रहा है क्या, हाँ सॉरी 1,185 घटाना है ना, तो 26,000 ही 600 आएगा। तो अब हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग को बैलेंस शीट बनाना होता है, तो आप बैलेंस शीट बना लो। आप सभी लोग को पता है कैसे बनाना है बैलेंस शीट, बनाइए बैलेंस शीट, फॉर्मेट फॉर्मेट खींचिए, ड्रॉ कीजिए। बैलेंस शीट एज एट अप्रैल 1 कब वो रिटायर हो रहा है, तो बैलेंस शीट पे डेट नहीं दिया है, ठीक है, तो आप अप्रैल 1 लिखकर छोड़ दो यहाँ पे। और यहाँ हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, आपको मालूम है दो साइड होता है, ये एसेट्स और लायबिलिटीज, डन। तो फटाफट बनाइए बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन सारा लीजिए। देखो नया बैलेंस शीट कुछ होता नहीं है, जस्ट लाइक अ ओल्ड बैलेंस शीट, ओके। सो यहाँ पर सबसे पहले हम कैश एट बैंक लिख देते हैं। तो कैश एट बैंक आपने अभी कैलकुलेट किया 26,600, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास डेटर था
तो सैलरी डेटर्स आपके पास था 5000 का, और प्रोविजन जो था वो 100 था, लेकिन उसको 250 करना था, तो 4750 अकॉर्डिंग टू रीवैल्यूएशन। फिर उसके बाद आपका स्टॉक आपका था 10,000 का 5% से डेप्रिसिएट हो गया है, तो ये हो जाएगा 9500। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट मशीनरी 11,500 का है, और प्लांट मशीनरी के लिए कुछ नहीं बोला है, सो एज इट इज दिखा देंगे 11,500। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग पहले से आपके पास कितने का था 25,000 का, और ये इंक्रीज हो गया है 20% से, तो ये हो जाएगा आपका 30,000, क्योंकि 5% से इंक्रीज किया था, ठीक है। तो अब हम लोग बाकी लायबिलिटी में लिखते हैं। तो लायबिलिटी साइड में आपको देखो मिलेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एडिशनल, तो जितना था उतना ही दिखा देंगे 7,000, ठीक है। अब इसके बाद कोई नया लायबिलिटी भी नहीं क्रिएट हुआ है क्या, वाइज लोन, क्योंकि वाई रिटायर हो गया है, तो वाई का लोन कितना हुआ था 26,000, कितना हमने ट्रांसफर किया था 26,600, ठीक है। तो ये हो गया वाई का लोन। अब कैपिटल किसका बच गया, कैपिटल अकाउंट अब बचा सिर्फ एक्स और जेड का, और कितना 24,000 एंड 24,000, तो टोटल हो जाएगा 48,000। अब खत्म हो गया आई थिंक, अब टोटल कर लो, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। 81,600, 82 बैलेंस शीट इतना दूसरा आ रहा है, कुछ छूटा है, हाँ एक चीज और छूटा है बेटा, आप लोग ध्यान रखो, आउटस्टैंडिंग प्रोविजन बना था लीगल चार्जेस का 750, उसको हम लिख देते हैं, नीचे लिख दे रहे हैं आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 750, रिवोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए करना है, तो अब आ जाएगा आपका 82,350। अब चेक कर लो, आ रहा होगा। Now your question is complete. So you take the screenshot or you can solve yourself.